السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہانی کے ناول سننے سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے گا تاکہ آنے والی مزید انٹرسٹنگ کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ پیر کامل عمیرہ احمد، قسط نمبر 16۔ گناہ کا بوجھ کیا ہوتا ہے اور آدمی اپنے گناہ کے بوجھ کو کس طرح قیامت کے دن اپنی پشت سے اتار پھینکنا چاہے گا، کس طرح اس سے دور بھاگنا چاہے گا، کس طرح اسے دوسرے کے کندھے پر ڈال دینا چاہے گا، یہ اس کے سمجھ میں حرم شریف میں پہنچ کر ہی آیا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر وہ اپنے پاس موجود اور آنے والی ساری زندگی کی دولت کی عوض سے بھی کسی کو گناہ بیچنا چاہتا تو کوئی یہ تجارت نہ کرتا۔ کاش آدمی کسی مال کی عوض اپنے گناہ بیچ سکتا، کسی کی اجرت کے طور پر دوسروں کی نیکیاں مانگنے کا حق رکھتا۔ لاکھوں لوگوں کے اس ہجوم میں دو سفید چادر اوڑھے کون جانتا تھا سالار کون تھا، اس کا آئی کیو لیول کیا تھا، کسے پرواہ تھی، اس کے پاس کون سی اور کہاں سے ڈگری تھی، کسے ہوش تھا اس نے زندگی کے میدان میں کتنے تعلیمات ریکارڈ دورے اور بنائے تھے، کسے خبر تھی وہ اپنے ذہن سے کون سے میدان تسخیر کرنے والا تھا، کون رشک کرنے والا تھا۔ وہ وہاں اس ہجوم میں ٹھوکر کھا کر گرتا، بھاگ دوڑ میں روندا جاتا۔ اس کے اوپر سے گزرنے والی خلقت میں سے کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ انہوں نے کیسے دماغ کو کھو دیا تھا، کس آئی کیو لیول کے نایاب آدمی کو کس طرح ختم کر دیا تھا۔ اسے دنیا میں اپنے اوقات، اپنی اہمیت کا پتہ چل گیا تھا۔ اگر کچھ مغالطہ رہ بھی گیا تھا تو اب ختم ہو گیا تھا، اگر کچھ شب و شبہ رہ بھی گیا تھا تو وہ اب دور ہو گیا تھا۔ فخر، تکبر، رشک، انا، خود پسندی، خود ستائشی کے ہر بچے ہوئے ٹکڑے کو نچوڑ کر اس کے اندر سے پھینک دیا گیا تھا۔ وہ انہی علائشوں کو دور کروانے کے لیے وہاں آیا تھا۔ ایم بی اے میں اس کی شاندار کامیابی کسی کے لیے بھی حیران کن نہیں تھی۔ اس کی ڈپارٹمنٹ میں ہر ایک کو پہلے سے ہی اس کا اندازہ تھا۔ اس کے اور اس کے کلاس فیلوز کے پروجیکٹس اور اسائنمنٹس میں اتنا فرق ہوتا تھا کہ اس کے پروفیسرز کو یہ ماننے میں کوئی آڑ نہیں تھا۔ مقابلے کی اس دوڑ میں 10 گز آگے دوڑ رہا تھا اور ایم بی اے کے دوسرے سال میں اس نے فاصلے کو اور بڑھا دیا تھا۔ اس نے انٹرنشپ اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی میں کی تھی اور اس کا ایم بی اے مکمل ہونے سے پہلے ہی ایجنسی کے علاوہ اس کے پاس 7 مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز کی طرف سے آفرز موجود تھیں۔ تم اب آگے کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس کے رزلٹ کے متعلق جاننے کے بعد سکندر عثمان نے اپنے پاس بلا کر پوچھا تھا، میں واپس امریکہ جانا چاہتا ہوں، میں یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے بزنس شروع کرو یا میرے بزنس میں شامل ہو جاؤ۔ سکندر عثمان نے اس سے کہا تھا، پاپا میں بزنس نہیں کر سکتا، بزنس والا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے میرا، میں جاب کرنا چاہتا ہوں اور میں پاکستان میں رہنا نہیں چاہتا۔ سکندر عثمان حیران ہوئے، تم نے پہلے کبھی ذکر نہیں کی کہ تم پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے، تم مستقل طور پر امریکہ میں سیٹل ہونا چاہتے ہو۔ پہلے میں نے امریکہ میں سیٹل ہونے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن اب میں وہیں رہنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ وہ ان سے یہ کہنا نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان میں اس کا ڈپریشن بڑھ جاتا ہے، وہ مسلسل امامہ کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، وہاں ہر چیز اسے امامہ کی یاد دلاتی تھی، اس کے پچھتاوے اور احساس جرم میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ میں یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا۔ سکندر عثمان کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، حالانکہ میرا خیال ہے کہ تم ایڈجسٹ ہو سکتے ہو۔ سالار جانتا تھا ان کا اشارہ کس طرف تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ جاب کرنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، چند سال جاب کر لو، لیکن اس کے بعد آ کر میرے بزنس کو دیکھو۔ یہ سب کچھ میں تم لوگوں کے لیے ہی اسٹیبل کر رہا ہوں، دوسروں کے لیے نہیں۔ وہ کچھ دیر اسے سمجھاتے رہے۔ سالار خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا۔ ایک ہفتے کے بعد وہ دوبارہ امریکہ آ گیا تھا اور اس کے چند ہفتے کے بعد اس نے یونیسیف میں جاب شروع کر دی تھی۔ وہ نیویارک سے نیو یارک چلا گیا تھا، یہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا، اور وہاں آنے کے چند ہفتے کے بعد اسے یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ وہ کہیں فرار حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسے وہاں بھی اسی طرح یاد آ رہی تھی، اس کا احساس جرم وہاں بھی اس کے ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ وہ 16 سے 18 گھنٹے تک کام کرنے لگا، وہ ایک دن بھی 3-4 گھنٹے سے زیادہ نہیں سویا، اور دن رات کی اس مصروفیت نے اسے بڑی حد تک نارمل کر دیا تھا۔ اگر ایک طرف کام کے اس انبار نے اس کے ڈپریشن میں کمی کی تھی تو دوسری طرف وہ اپنے ارادے کے نمایاں ترین ورکرز میں شمار ہونے لگا تھا۔ یونیسیف کے مختلف پروجیکٹس کے سلسلے میں وہ ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے ممالک جانے لگا۔ غربت اور بیماری کو وہ پہلی دفعہ اپنی آنکھوں سے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ رپورٹس اور اخباروں میں چھپنے والے حقائق میں اور ان حقائق کو اپنی تمام ہولناکی کے ساتھ کھلی آنکھوں سے دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق اسے اس جاب میں ہی سمجھ آیا تھا۔ وہ ہر روز بھوکے سونے والے لوگوں کی تعداد کروڑوں میں تھی، ہر رات پیٹ بھر کے ضرورت سے زیادہ کھا لینے والوں کی تعداد
करोड़ों में थी। सिर्फ 3 वक्त का खाना, सर पर छत और जिस्म पर लिबास भी कितनी बड़ी नेमतें थीं, इसे तब समझ आया था। वो यूनिसेफ की टीम के साथ चार्टर्ड तैयारों में सफ़र करते हुए अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता। इसे ज़िंदगी में ऐसे कौन से कारनामे अंजाम दिए थे कि इसे वो आसाइश ज़िंदगी दी गई थी जो वो गुजार रहा था। इन लोगों से क्या गुनाह हुए थे कि वो ज़िंदगी की तमाम बुनियादी ज़रूरतों से महरूम सिर्फ ज़िंदा रहने की ख्वाहिश में खुराक के इन पैकेट्स के पीछे भागते फिरते थे। वो सारी सारी रात जाकर अपने आधे खेली मुमकिन स्कीमें और प्लान बनाता रहता। कहाँ खुराक की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकती है, क्या बेहतरी लाई जा सकती है, कहाँ मज़ीद आमद की ज़रूरत है, किन इलाकों में किस तरह के प्रोजेक्ट दरकार थे। वो बाज़ दफ़ा 48 घंटे बगैर सोए काम करता रहता। इसके बनाए हुए प्रपोजल्स और रिपोर्ट्स तकनीकी लिहाज से इतने मजबूत होते थे कि इनमें कोई खामी ढूंढना किसी के लिए मुमकिन नहीं रहता था, और इसकी ये खसूसियात इसकी ताकत और नाम को और भी ज़्यादा मुकम्मल करती जा रही थी। अगर मुझे अल्लाह ने दूसरों से बेहतर ज़हन और सलाहियतें दी हैं तो मुझे इन सलाहियतों को दूसरों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि मैं दूसरों की ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी ला सकूं, दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकूं। वो काम करते हुए इसके अलावा और कुछ नहीं सोचता था। यूनिसेफ के लिए काम करने के दौरान इसने एमफिल करने का सोचा था और फिर इसने एमफिल में एडमिशन ले लिया था। इवनिंग क्लासेस को ज्वाइन करते हुए इसे कतान किसी किस्म का शोबा नहीं था कि वो अपने आप को एक बार फिर ज़रूरत से ज़्यादा मसरूफ़ कर रहा था, मगर इसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। काम इसका जुनून बन चुका था, या फिर इससे भी 2 कदम आगे बढ़कर एक मिशन। फुरकान से सलार की पहली मुलाकात अमेरिका से पाकिस्तान आते हुए फ़्लाइट के दौरान हुई। वो इसके साथ सीट पर बैठा हुआ था। वो अमेरिका में डॉक्टर्स की किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके वापस आ रहा था, जबकि सलार सिकंदर अपनी बहन अनीता की शादी में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ रहा था। इस लंबी फ़्लाइट के दौरान दोनों के दरमियान इब्तदाई तारुफ के बाद गुफ्तगू का सिलसिला थमा नहीं। फुरकान उम्र में सलार से काफ़ी बड़ा था। वो 35 साल का था। लंदन में स्पेशलाइजेशन करने के बाद वो वापस पाकिस्तान आ गया था और वहाँ एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था। वो शादीशुदा था और इसके 2 बच्चे भी थे। चंद घंटे आपस में गुफ्तगू करते रहने के बाद फुरकान और वो सोने के लिए तैयारी करने लगे। सलार ने मामूल के मुताबिक अपने ब्रीफ केस से स्लीपिंग पिल्स की एक गोली पानी के साथ निकाल ली। फुरकान ने इसकी इस तमाम कार्रवाई को खामोशी से देखा। जब इसने ब्रीफ केस बंद करके दोबारा रख दिया तो फुरकान ने कहा, अक्सर लोग फ्लाइट के दौरान स्लीपिंग पिल्स के बगैर नहीं सो सकते। सलार ने गर्दन मोड़ कर इसे देखा और कहा, मैं स्लीपिंग पिल्स के बगैर नहीं सो सकता। फ्लाइट में हूँ या ना हूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सोने में मुश्किल पेश आती है। फुरकान को एकदम कुछ तजस्सुस हुआ। मुश्किल? सलार मुस्कुराया, मैं सिरे से सो नहीं सकता। मैं स्लीपिंग पिल्स लेता हूँ और 3 से 4 घंटे सो लेता हूँ। इंसोमीनिया? फुरकान ने पूछा। शायद मैंने डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया, मगर शायद ये वही है। सलार ने कदरे लापरवाही से कहा, तुम्हें चेकअप करवाना चाहिए था। इस उम्र में इंसोमीनिया ये कोई बहुत सेहतमंद इलामत नहीं है। मेरा ख्याल है तुम काम के पीछे जुनूनी हो चुके हो और इसी वजह से तुमने अपने सोने के नॉर्मल रूटीन को ख़राब कर लिया है। फुरकान अब किसी डॉक्टर की तरह बोल रहा था। सलार मुस्कुराते हुए सुनता रहा। वो इसे नहीं बता सकता था कि वो अगर रात दिन मुसलसल काम ना करे तो वो इस एहसास जुर्म के साथ ज़िंदा नहीं रह सकता था कि वो स्लीपिंग पिल्स के बगैर सोने की कोशिश करे तो वो इमामा के बारे में सोचने लगता है, इस हद तक कि इसे अपना सर दर्द से फटता हुआ महसूस होने लगता है। इतने घंटे काम करते हुए एक दिन में फुरकान अब पूछ रहा था, 18 घंटे बाज़ दफ़ा। माय गॉड, नाइस। और कब से? 2-3 साल। और तब से ही नींद का मसला होगा तुम्हें। मैंने ठीक अंदाज़ा लगाया, तुमने खुद अपनी रूटीन ख़राब कर ली है, फुरकान ने इससे कहा। और ना इतने घंटे काम करने वाले आदमी को तो जहनी थकन ही एक लंबी और पुरसकून नींद सुला देती है। ये मेरे साथ नहीं होता, सलार ने मध्यम लहजे में कहा। यही तो तुम्हें जानने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर ये तुम्हारे साथ नहीं होता तो क्यों नहीं होता। सलार इसे ये नहीं कह सका कि वो वजह जानता है। कुछ देर की खामोशी के बाद फुरकान ने इससे कहा, अगर मैं तुम्हें कुछ आयतें बताऊं रात को सोने से पहले तो तुम पढ़ सकोगे? क्यों नहीं पढ़ सकूंगा? सलार ने गर्दन मोड़कर इससे कहा, नहीं, असल में तुम्हारे और मेरे जैसे लोग जो ज़्यादा पढ़ लेते हैं और ख़ास तौर पर तालीम मगरिब में हासिल करते हैं वो ऐसी चीज़ों पर यकीन नहीं रखते, इन्हें प्रैक्टिकल नहीं समझते। फुरकान ने वजाहत की, फुरकान में हाफ़िज़ कुरान हूँ। सलार ने इसी तरह लेटे हुए पुरसकून आवाज़ से कहा। फुरकान को जैसे करंट लगा। मैं रोज़ रात को सोने से पहले एक सिपारा पढ़कर सोता हूँ। मेरे साथ यकीन या एतमाद का कोई मसला नहीं है। सलार ने बात जारी रखी, मैं भी हाफ़िज़ कुरान हूँ, फुरकान ने बताया। सलार ने गर्दन मोड़कर मुस्कुराते हुए इसे देखा। ये यकीनन एक खुशगवार इत्तेफाक था। अगरचे फुरकान ने दाढ़ी रखी हुई थी, मगर सलार को फिर भी ये अंदाज़ा नहीं हो पाया था कि वो हाफ़िज़ कुरान है। फिर तो तुम्हें इस तरह का कोई मसला नहीं होना चाहिए। कुरान पाक की तिलावत करके सोने वाला इंसान को नींद ना आए, ये मुझे अजीब लगता है। सलार ने फुरकान को बड़बड़ाते हुए सुना। वो अब अपने हवस को हल्का
हल्का मफलूज पा रहा था। नींद इस पर गालिब आ रही थी। इसने आंखें बंद कर ली। तुम्हें कोई परेशानी है? इसने फुरकान की आवाज़ सुनी। वो नींद की गोलियों के ज़ेरे असर ना होता तो मुस्कुरा कर इनकार कर देता, मगर वो जिस हालत में था इसमें वो इनकार नहीं कर सका। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है, मुझे सुकून नहीं है। मुझे लगता है मैं मुसलसल किसी सहरा में सफ़र कर रहा हूँ। पछतावे और एहसास से जुड़ा मुझे छोड़ते ही नहीं हैं। मुझे किसी पीर कामिल की तलाश है जो मुझे इस तकलीफ़ से निकाल दे, जो मुझे मेरी ज़िंदगी का रास्ता दिखा दे। फुरकान दम बखुद इसका चेहरा देख रहा था। सलार की आंखें बंद थीं, मगर वो इसकी आंखों के कोने से निकलती हुई नमी को देख रहा था। इसकी आवाज़ में भी बेरब्ती और लड़खड़ाहट थी। वो इस वक्त लाशौरी तौर पर स्लीपिंग पिल्स के ज़ेरे असर बोल रहा था। वो अब खामोश हो चुका था। फुरकान ने मज़ीद कोई सवाल नहीं किया। बहुत हमवार अंदाज में चलने वाली इसकी सांस बता रही थी कि वो नींद में जा चुका था। जहाज़ में होने वाली वो मुलाकात वहीं ख़त्म नहीं हुई। वो दोनों जागने के बाद भी आपस में गुफ्तगू करते रहे। फुरकान ने सलार से इन चंद जुमलों के बारे में नहीं पूछा था जो इसने नींद के आगोश में समाते हुए बोले थे। खुद सलार को भी अंदाज़ा नहीं था कि इसने सोने से पहले इससे कुछ कहा था। सफ़र ख़त्म होने से पहले इन दोनों ने आपस में कॉन्टैक्ट नंबर्स और एड्रेस का तबादला किया। फिर सलार ने इसे अनीता की शादी पर इन्वाइट किया। फुरकान ने आने का वादा किया, मगर सलार को इसका यकीन नहीं था। इन दोनों की फ़्लाइट कराची तक थी। फिर सलार को इस्लामाबाद की फ़्लाइट लेनी थी, जबकि फुरकान को लाहौर की। एयरपोर्ट पर फुरकान ने बड़ी गर्मजोशी के साथ इससे अलविदा मुज़ाहिफा किया। अनीता की शादी 3 दिन बाद थी और सलार के पास इन 3 दिनों के लिए भी बहुत से काम थे। शादी की मसरूफियात और कुल इसके अपने मसले। वो अगले दिन शाम को इस वक्त हैरान हुआ जब फुरकान ने इसे फ़ोन किया। 10-15 मिनट दोनों की गुफ्तगू होती रही। फ़ोन बंद करने से पहले सलार ने एक बार फिर इसे अनीता की शादी के बारे में बताया। कोई याद दिलाने वाली बात नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं वैसे भी इस वीकेंड पर इस्लामाबाद में ही हूँगा, फुरकान ने जवाबन कहा। वहाँ मुझे अपने गांव में अपने स्कूल देखने भी जाना है। इसकी बिल्डिंग में कुछ अजाफी तामीर हो रही है। इस सिलसिले में तो इस्लामाबाद में इस बार मेरा क़याम कुछ लंबा ही होगा। सलार ने इसकी बात को कुछ दिलचस्पी से सुना। गाँव? स्कूल? क्या मतलब? स्कूल चला रहा हूँ मैं वहाँ अपने गांव में। फुरकान ने इस्लामाबाद के नवाही इलाकों में से एक का नाम लिया, बल्कि कई सालों से। किस लिए? फुरकान को इसके सवाल ने हैरान किया। लोगों की मदद के लिए। और किस लिए? चैरिटी वर्क है? नहीं, चैरिटी वर्क नहीं है, ये मेरा फ़र्ज़ है। ये किसी पर कोई एहसान नहीं है। फुरकान ने बात करते करते मौजू बदल दिया। स्कूल के बारे में मज़ीद गुफ्तगू नहीं हुई और फ़ोन बंद हो गया। फुरकान अनीता की शादी में वाकई आ गया था। वो खासी देर वहाँ रुका, मगर सलार को महसूस हुआ कि वो कुछ हैरान था। तुम्हारी फैमिली तो खासी मगरिब ज़दा है। सलार को एकदम से इसकी उलझन और हैरानी की वजह समझ आ गई। मेरा ख्याल था कि तुम्हारी फैमिली कुछ कंजर्वेटिव सी होगी, क्योंकि तुमने बताया था कि तुम हाफ़िज़ कुरान हो और तुम्हारा लाइफस्टाइल मुझे कुछ सादा सा लगा। मगर यहाँ आकर मुझे हैरानी हुई। तुम और तुम्हारी फैमिली में आई थिंक यू आर द ऑड वन आउट। बहुत फ़र्क है। वो अपनी आखिरी जुमले पर खुद ही मुस्करा दिया। वो दोनों फुरकान की गाड़ी के करीब पहुँच चुके थे। मैंने सिर्फ 2 साल पहले कुरान पाक हिफ्ज़ किया और 2-3 साल पहले ही ऑड वन आउट हुआ हूँ। पहले मैं अपनी फैमिली से भी ज़्यादा मगरिब ज़दा था। इसने फुरकान को बताया। 2 साल पहले कुरान पाक हिफ्ज़ किया अमेरिका में अपनी स्टडीज़ के दौरान। मुझे यकीन नहीं आ रहा। फुरकान ने बेयकीनी से सर हिलाया। कितने अरसे में किया? तकरीबन 8 माह में। फुरकान कुछ देर तक कुछ नहीं कह सका। वो सिर्फ इसका चेहरा देखता रहा। फिर इसने गहरा सांस लेकर सताइशी नज़रों से इसे देखा। तुम पर अल्लाह का कोई ख़ास ही करम है, वरना जो कुछ तुम मुझे बता रहे हो ये आसान काम नहीं है। मैं फ़्लाइट में भी तुम्हारे कारनामों से काफ़ी मुतासिर हुआ था, क्योंकि जिस उम्र में यूनेस्को में जिस स्टेट पर तुम काम कर रहे हो हर कोई नहीं कर सकता। उसने एक बार फिर बड़ी गर्मजोशी के साथ सलार से हाथ मिलाया। चंद लम्हों के लिए सलार के चेहरे का रंग तब्दील हुआ। अल्लाह का खास करम। अगर मैं इसे ये बता दूं कि मैं सारी ज़िंदगी क्या करता रहा हूँ तो ये। सलार ने इसे हाथ मिलाते हुए सोचा। तुम परसों किस स्कूल की बात कर रहे थे? सलार ने दांस्ता तौर पर मौजू बदला। तुम इस्लामाबाद में रहते हो? नहीं, मैं इस्लामाबाद में ही रहता हूँ, मगर मेरा एक गाँव है, आबाई गाँव। वहाँ हमारी फैमिली की ज़मीन है, एक घर भी था। फुरकान इसे तफसील से बताने लगा। कई साल पहले मेरे वालिद इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे। मेरे वालिद ने फेडरल सर्विस से रिटायरमेंट के बाद अपनी ज़मीन पर एक स्कूल बना लिया। इस गांव में कोई स्कूल नहीं था, उन्होंने प्राइमरी स्कूल बनवाया था। 7-8 साल से मैं इसे देख रहा हूँ। अब वो सेकेंडरी स्कूल बन चुका है। 4 साल पहले मैंने वहाँ एक डिस्पेंसरी बनवाई। तुम इस डिस्पेंसरी को देखकर हैरान रह जाओगे। बहुत जदीद सामान है इसमें। मेरे एक दोस्त ने एक एम्बुलेंस भी गिफ्ट की है और अब सिर्फ मेरे गांव के नहीं बल्कि इर्द गिर्द के बहुत सारे गांव के लोग भी इस स्कूल और इस डिस्पेंसरी से फ़ायदा उठा रहे हैं।
और इसकी बातें तवज्जो से सुन रहा था। मगर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम एक सर्जन हो, तुम ये सब कैसे कर लेते हो? और इसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है। क्यों कर रहा हूँ ये तो मैंने अपने आप से कभी नहीं पूछा। मेरे गांव में इतनी गुर्बत थी कि ये सवाल पूछने की मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम लोग बचपन में कभी कभार अपने गांव जाया करते थे। ये हमारे लिए तफरीह थी। हमारी हवेली के अलावा गांव का कोई मकान पक्का नहीं था। सड़क का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम सबको यूं लगता था जैसे हम जंगल में आ गए हैं, और अगर हम जानवर होते तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शहर की तरह हम जंगल में धुंधनाते फिरते, यही सोच कर कि सब हम सबसे मरऊब हैं और कोई भी हमारे जैसा नहीं। ना कोई हमारी तरह रहता है, ना हमारे जैसा खाता है, ना हमारे जैसा पहनता है। मगर इंसान होकर ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है कि हमारे इर्द गिर्द के इंसान जानवर जैसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हो सकता है कुछ इंसानों को इससे खुशी महसूस होती हो कि इन्हीं पर नेमत मैसर है और बाकी सब तरस रहे हैं, मगर हमारा शुमार ऐसे लोगों में नहीं होता। सवाल ये पैदा होता था कि क्या किया जाए। मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं थी कि मैं इसे हिलाता और सब कुछ बदल देता, ना ही बेशुमार वसाइल। तुम्हें मैंने बताया है ना कि मेरे वालिद सोल सर्वेंट थे, ईमानदार किस्म के सोल सर्वेंट में, और मेरा भाई दोनों शुरू से ही स्कॉलरशिप पर पढ़ते रहे हैं। इसलिए हम पर हमारे वालिद को ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ा। खुद वो भी कोई फजूल खर्च नहीं थे, इसलिए थोड़ी बहुत बचत होती रही। रिटायरमेंट के बाद मेरे वालिद ने सोचा कि लाहौर या इस्लामाबाद के किसी घर में अखबार पढ़कर, वर्क करके या टीवी देखकर ज़िंदगी गुजारने की बजाय इन्हें अपने गांव जाना चाहिए। वहाँ कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करनी चाहिए। वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठते हुए मुश्किलात का तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते। गांव में ना बिजली थी, ना साफ पानी, कुछ भी नहीं था। बाबा ने पता नहीं कहाँ कहाँ भाग कर ये सारी चीज़ें मंजूर करवाईं। जब वहाँ प्राइमरी स्कूल बन गया, एक सड़क भी आ गई, बिजली और पानी जैसी सहूलतें भी आ गईं, तो गवर्नमेंट को अचानक वहाँ एक स्कूल बनाने का ख्याल आया। वालिदैन की खुशी थी कि गवर्नमेंट इनके स्कूल को अपनी ज़ेरे निगरानी ले ले, इसमें अपने टीचर्स भिजवाए और कुछ अरसे के बाद इस स्कूल को अपग्रेड कर दे। पर महकमा तालीम के साथ चंद राब्तों के बाद ही बाबा को अंदाज़ा हो गया था कि ऐसे हुए की सूरत में इनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। बाबा वहाँ बच्चों को सब कुछ देते थे, किताबें, कापियाँ, यूनिफॉर्म और ऐसी कुछ ज़रूरी चीज़ें। इन्होंने बाकायदा इसके लिए फ़ंड्स रखे हुए थे। मगर तुम अंदाज़ा कर सकते हो कि गवर्नमेंट के पास चले जाने के बाद स्कूल का क्या हशर होता। सबसे पहले वो फ़ंड जाते, फिर बाकी सब कुछ। इसलिए बाबा खुद ही इस स्कूल को चलाते रहे। महकमा तालीम ने वहाँ स्कूल फिर खोला, मगर वहाँ एक बच्चा भी नहीं गया। फिर हार मान कर उन्होंने वो स्कूल बंद कर दिया और हमारे स्कूल को अपग्रेड कर दिया। बाबा के कुछ दोस्तों ने इस सिलसिले में इनकी मदद की। इसी तरह इसकी अपग्रेडिंग होती गई। मैं इन दिनों लंदन में पढ़ता था और रुपया बचा बचा कर इनको भेजा करता था। अभी भी हम इनको और तरक्की दे रहे हैं। आस पास के गांव के लोग भी अपने बच्चे को हमारे पास भिजवाते हैं। मैं जब पाकिस्तान वापस आया तो मैंने वहाँ एक बाज़ाब्ता किस्म की डिस्पेंसरी कायम की। गांव की आबादी भी अब बहुत बढ़ गई है, लेकिन गांव में गुर्बत अभी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। तालीम से इतना ज़रूर हुआ है कि गांव के कुछ बच्चे बाहर शहर में आकर पढ़ने के लिए जाने लगे हैं। कुछ मुख्तलिफ हुनर सीख रहे हैं। वो जो गुर्बत का एक चक्कर था वो ख़त्म हो रहा है। इनकी ये नस्लें नहीं तो अगली नस्लें शायद तुम्हारे और मेरे जैसे तालीमी इदारों से आला डिग्रीज लेकर निकलें। कौन कह सकता है, वो मुस्कुराते हुए बोला। मैं हर माह एक वीकेंड पर गांव जाता हूँ। वहाँ 2 कंपाउंडर हैं, मगर कोई डॉक्टर नहीं है। एक वीकेंड पर मैं वहाँ जाता हूँ, बाकी 3 वीकेंड पर भी हम किसी न किसी को वहाँ भिजवा देते हैं। फिर मैं वहाँ हर 3 माह बाद एक मेडिकल कैंप लगवाता हूँ। और इस सब के लिए रुपया कहाँ से आता है? शुरू में तो ये बाबा का रुपया था और इन्हीं की ज़मीन पर स्कूल बना। इनकी ग्रेजुएटी से इसकी तामीर हुई। मेरी अम्मी ने भी अपने पास मौजूद रकम से इनकी मदद की। बाबा के कुछ दोस्त भी माली इमदाद करने लगे। इसके बाद मैं और मेहरान भी इसमें शामिल हो गए, फिर मेरे कुछ दोस्त भी। मैं अब अपनी इनकम का एक ख़ास हिस्सा हर माह गाँव भिजवा देता हूँ। इससे डिस्पेंसरी बड़े आराम से चलती रहती है। जो डॉक्टर्स वहाँ महीने के 3 वीकेंड्स पर जाते हैं वो कुछ चार्ज नहीं करते। इनके लिए ये सोशल वर्क है। मेडिकल कैंप्स भी इसी तरह के लग जाते हैं। और स्कूल के पास अब इतने फिक्स डिपॉजिट्स हो चुके हैं कि इनसे आने वाली रकम टीचर्स की तनख्वाह और दूसरे अखराजात के लिए काफ़ी होती है। चंद सालों में वहाँ टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी कुछ काम करना चाहते हैं। तुम कब जा रहे हो वहाँ? मैं तो सुबह निकल रहा हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ जाना चाहूँ, सलार ने कहा। मोस्ट वेलकम, मगर कल तो वलीमा होगा, तुम यहाँ मसरूफ़ होगे। फुरकान ने इसे याद दिलाया। वलीमा तो रात को है, सारा दिन तो मैं फारिग ही हूँगा। क्या रात तक पहुँचना मुश्किल होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
बहुत आसानी से पहुंच सकते हो, सिर्फ सुबह को जल्दी निकलना पड़ेगा अगर तुम वाकई वहां चंद घंटे गुजारना चाहते हो, वरना फिर तुम वापस आकर खासे थक जाओगे। फरकान ने इससे कहा, मैं नहीं थकूंगा। मैं यूनिसेफ की टीम्स के साथ कैसे कैसे इलाकों में सफ़र करता रहा हूँ, तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं हो सकता। मैं फजर के बाद तैयार रहूँगा, तो मुझे वक्त बता दो। 5:30। ओके। तुम घर से निकलते हुए मुझे एक बार मोबाइल पर कॉल कर लेना और 2-3 बार हॉर्न देना यहाँ आकर, मैं निकल आऊँगा, इसने फुरकान से कहा और फिर खुदा हाफिज़ कहते हुए अंदर मुड़ गया। अगली सुबह फुरकान ठीक 5:30 बजे इसके गेट पर हॉर्न दे रहा था और सलार पहले ही हॉर्न पर बाहर था। तुम वापस पाकिस्तान क्यों आ गए? तुम इंग्लैंड में ही आगे जा सकते थे। गाड़ी शहर से बाहर वाली सड़क पर भाग रही थी। इन्हें सफ़र करते आधा घंटा हो गया था जब सलार से अचानक इसने पूछा, इंग्लैंड को मेरी ज़रूरत नहीं थी, पाकिस्तान को थी, इसलिए मैं पाकिस्तान आ गया। फुरकान ने बड़े नॉर्मल अंदाज में कहा, वहाँ एक डॉक्टर फुरकान के ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ एक डॉक्टर फुरकान के ना होने से बहुत फ़र्क पड़ता था। हाँ, मेरी खिदमत की ज़रूरत है, इसलिए आखिरी जुमले पर जोर देते हुए कहा, मगर इतने सालों में तुम बहुत आगे जा सकते थे, फिर प्रोफेशनली भी तुम बहुत कुछ सीखते, फाइनेंशली भी तुम इस प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा रुपया हासिल कर सकते थे जो तुमने शुरू किया हुआ था। आफ्टर ऑल पाकिस्तान में तुम इतने कामयाब नहीं हो सकते, सलार ने कहा। अगर कामयाबी से मुराद तुम्हारी पाउंड्स की तादाद और सहूलतों से है तो हाँ, दोनों जगहों का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा इशारा इलाज की तरफ है तो मैं यहाँ ज़्यादा लोगों को ज़िंदगी बांट रहा हूँ। इत्मीनान डॉक्टर अपने सेहतयाब होने वाले मरीज़ को देखकर हासिल करता है, तुम इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। इंग्लैंड ऑन्कोलॉजिस्ट से भरा हुआ है, पाकिस्तान में इनकी तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है। मैं वहाँ रहकर पैसों का ढेर भी यहाँ भिजवाता रहता तो कोई फ़र्क ना पड़ता। जहाँ एक फ़र्द की कमी होती है वहाँ इस फ़र्द से ही वो कमी पूरी होती है। रुपया कोई दूसरी चीज़ इसकी जगह नहीं ले सकता। मैं बहुत काने हूँ सलार, मेरी पूरी फैमिली बहुत काने हैं। अगर मैंने कोई चीज़ सीखी है तो वो सबसे पहले मेरे अपने लोगों के काम आनी चाहिए। मैं अपने लोगों को मरता छोड़कर दूसरे लोगों की ज़िंदगी नहीं बचा सकता। पाकिस्तान में कुछ भी सही नहीं है, सब कुछ ख़राब है, कुछ भी ठीक नहीं, सहूलतों से खाली हॉस्पिटल्स और हद से ज़्यादा बुरा और करप्ट हेल्थ सिस्टम, जिसकी बुराई और खामी का सोचो वो यहाँ है, मगर मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकता। अगर मेरे हाथ में शफा है तो फिर सबसे पहले ये शफा मेरे अपने लोगों के हिस्से में आनी चाहिए। सलार बहुत देर तक कुछ नहीं बोल सका, गाड़ी में यकदम खामोशी छा गई थी। तुमने मुझसे तो ये सवाल पूछ लिया कि मैं पाकिस्तान क्यों आ गया, क्या मैं तुमसे ये सवाल पूछूं कि तुम पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? फुरकान ने कुछ देर की खामोशी के बाद मुस्कुराते हुए कहा, अगली किस्त देखने या सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारे कमेंट्स करें, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसी लगी भी कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली किस्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।